Welcome back to our special show. 12th June today, World Day Against Child Labour. Now, the Kailash Satyarthi Children's Foundation, through its Justice for Every Child campaign, has been fighting against this evil, and they've rescued 1 lakh children so far. Let's take a look now at this report on how Bal Mitra Grams and the Mukti Caravan have brought changes to villages in Jharkhand and Bihar. A class 12 student from a remote village in Jharkhand's Kodarma district, Deepika Kumari spends most of her time preparing for her board examinations. This was unthinkable a few years ago when she was engaged as a child labour picking dibra or mica scraps from mica mines nearby, like scores of other children in the area. The Kailash Satyarthi Children's Foundation, through its globally recognized Bal Mitra Gram model, rescued her and linked her to formal education. A transformative grassroots model spread in 640 villages across the country, Bal Mitra Grams or BMGs empower children to take democratic action to protect their rights and enable parents and stakeholders to stand up for the rights of children. The model creates a safety net to prevent child trafficking, child labour, child sexual abuse and child marriage. Determined to take children out of the drudgery of labour, today Deepika acts as a role model in her community, motivating adults to ensure children continue with their studies. कल तक तो हम लोगों से बात नहीं करते थे, बात करना नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग के गांव में विधायक हो या कोई भी आयो, डीसी हो, कोई भी किसी के सामने बेझिझक आज हम लोग बात करते हैं अपनी समस्याओं के लेकर। सर कोई चीज़ का पता नहीं था ना, छोटे छोटे बच्चे जाते थे अबरख चुनने के लिए, किसी तरह का कोई पता नहीं था कि कैसे चलना चाहिए आदमी को। अब तो आदमी जो चिल्ड्रन प्रोडक्शन इनके द्वारा हुआ, सत्यार्थी जी के लोग घर घर जाके समझाएं, लोगों ने समझ गए। While BMGs have ushered in a silent revolution in vulnerable districts, Kailash Satyarthi Children's Foundation's Mukti Caravan too is scripting a new chapter in rural India. Led by youth withdrawn from child labour, Mukti Caravan moves across the country, spreading awareness about the organised crime of child trafficking and other forms of exploitation of children. In Bihar's Katihar, for instance, youth activists are moving door to door to raise awareness in over 500 villages and highlight the importance of education. हम लोग गांव में जा करके लोगों जब बात करते तो हमारे पास बहुत सारी समस्या आती है। फ़ोन के हम लोग जब जाते हैं गांव में, वॉलेंटियर बनाते हैं गांव में, हर गांव में जाकर 2 वॉलेंटियर 3 वॉलेंटियर बनाते हैं। उस वॉलेंटियर के माध्यम से हमें फिर सूचना आती है कि सर यहाँ पे ये बात हुई है और ये घटना हुई, बच्चों के साथ ये घटना हो गई है। तो फिर उस घटना के माध्यम से हम लोग फिर काम करते हैं। वो फिर इस पर्चे वितरण के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं, वो डाटा चाइल्ड लाइन वाले को कॉल आता है, फिर वो वहाँ से बच्चे रेस्क्यू होता है। ये सवाल उठता है कि बच्चों का पुनर्वास होगा, वो शिक्षा के साथ जोड़े जाएंगे, मुख्य धारा में जोड़े जाएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज होती है, वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो है बच्चों की लीडरशिप बिल्ड करना। जो फॉर्मर बॉन्डेड चाइल्ड लेबरर्स हैं वो अपनी आवाज को समाज के सामने लेके जाएं, और उसमें से बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो इस मुक्ति कारवां टीम के हिस्से बने, और इसकी शुरुआत 1997 में कैलाश सत्यार्थी जी ने किया, और अभी तक हम लोगों ने 600 ऐसे गांवों को बाल मजदूरी मुक्त किया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री किया है, चाइल्ड मैरिज फ्री है, किसी बच्चे या बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ है। तो ये एक मॉडल के तौर पे आया है, और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो बच्चे हैं, वो बच्चों का नेतृत्व है। Bal Mitra Gram and Mukti Caravan are exemplary models of how we can ensure positive transformation in the lives of vulnerable children. Children are our future, and their all-round development must be a priority for all. The curse of child labour must be eradicated at all costs. Bureau Report, NDTV.
Well, let's now go across to our remarkable young guests, all of them heroes who were pulled out of child labor. And today they've all become youth leaders and activists and are giving back to society in a big way. Arvind Kumar Sharma, who was rescued when he was 8 years old. And today he's part of the Mukti Caravan, or campaign on wheels that fights against child labor. You just saw that in that report. Champa Kumari from Jharkhand, who won the prestigious Diana Award for humanitarian work. And she has fought against child marriages in her community. And Kinsu Kumar, who was rescued from child labor. He studied hard, became an engineer, and he now works to help save other children from child labor. Thank you all for joining us today on the show. चंपा, मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूँ. आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ जब संस्था ने आपको अप्रोच किया? आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए. नमस्ते, मैं चंपा कुमारी, राष्ट्रीय महाबाल पंचायत की उपाध्यक्ष हूँ. पहले मैं बाल मजदूर थी जो ढिबरी के खदान में काम किया करती थी. हमारे गांव के सारे लोग, हमारे घर परिवार लोग सब साथ में ढिबरी के खदान में काम करते थे. अगर कहा जाए तो हमारे गांव में मुख्य रूप से अगर रोजगार है तो ढिबरा का खदान ही है. हमारे साथ हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे ढिबरी के खदान में काम करने के लिए जाते थे. वही 2016 से माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी की प्रेरणा से हमारे गांव में बाल मित्र ग्राम की परियोजना हुई और सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी नामांकन स्कूल में कराई गई, ढिबरी की खदान से छुड़वा करके. मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी मैं पढ़ाई नहीं की थी. जो भी होता था घर में करती थी थोड़ा मोड़ा, और मैं स्कूल कभी नहीं गई थी. 2016 में ही हमारी नामांकन 6 क्लास में करवाई गई. राष्ट्रीय बाल पंचायत के अध्यक्ष बनने के बाद और राष्ट्रीय महाबाल पंचायत के उपाध्यक्ष बनने के बाद अपने लगभग 12+ गांवों के सारे बाल पंचायत के सदस्यों के साथ मिल करके लगभग 100+ बाल मजदूरी को रुकवाए और उन्हें स्कूल से जोड़े. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाल विवाह भी हुआ करते थे जिनके खिलाफ हम सारे बच्चे आवाज़ बुलंद किए और अभी तक 2 बाल विवाह भी रुकवाए जिसमें सफल कर गए. जी चंपा, आप ये जो बाल विवाह के अगेंस्ट आपने जो लड़ाई करी है उसके बारे में बताइए. आपकी कम्युनिटी में किस तरह का रिएक्शन हुआ जब आपने इस मुद्दे को उठाया? मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग मीटिंग किया करते थे हर एक सप्ताह तो फिर हर एक माह में करते थे, महीना में, तो वो खुद से आकर के निमंत्रण दे रही है हम लोग के साथ कि हमारी मैरिज हो रही है, आप लोग को इनवाइट दे रही हूँ मैं, आइएगा हमारी शादी में. तो वही अपने कार्यकर्ता से बोली और सारे हमारे साथी लोग से कि ये शादी होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इनकी उम्र अभी तक पूरी नहीं हुई है. तो हमारे कार्यकर्ता भी बोले कि ये तो सच में नहीं होनी चाहिए. तो जब वापस अपना घर लौटे स्कूल से आकर के तो रजिस्टर में हम नोट कर चुके थे. फिर उनसे हमारे मतलब उनसे और ज़्यादा बड़े कार्यकर्ता होते हैं, उनसे भी बात किए. तो उस मुद्दे को लेकर के गांव आए, मीटिंग किए और उसमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी जो हमें थाना का भी सहारा लेना पड़ा. और मैं हम सभी साथी लोग भी उसमें बाल विवाह रुकवाने में सफल हो गए. जी, वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. आईड लाइक टू गो अक्रॉस टू अरविंद नाउ. अरविंद, आप 8 साल के थे जब आपको बचपन बचाओ आंदोलन ने बचाया था. आपने उसके बाद अपनी पूरी पढ़ाई भी पूरी करी है और आज आप जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इस चाइल्ड लेबर के मुद्दे में, अपने बारे में ज़रा बताइए. नमस्ते मैम, मेरा नाम अरविंद है और मैं जैसे बताया आपने कि मैं एक स्वयं आज से लगभग 12-13 साल पहले मैं बाल मजदूर था. मुझे भी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा मुक्त कराया गया. उसके बाद मैंने अपनी आगे की शिक्षा बाल आश्रम में रहकर पूरी की, जो कि पुनर्वास केंद्र है बच्चों का, जो मुक्त होने के बाद जिनके फैमिली जो वनरेबल होते हैं वो पढ़ा नहीं पाते अच्छे से, बच्चे की परवरिश नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पर रहकर लॉन्ग टाइम रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर रहकर मैंने अपनी आगे की शिक्षा पूरी की. और मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ शिक्षा से नहीं वहाँ पे बल्कि व्यक्तिगत नागरिक बच्चों के अधिकार कैसे जीना है बच्चों को, क्या बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों के अधिकार बचपन में ही क्यों सुनिश्चित होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बाल आश्रम में रहकर सीखा.
और तब से मैंने ज़रूर सोचा कि वास्तविक में जो मेरा बचपन था, जो मैंने जिया है जब एक होटल में जब मैं बाल मजदूर था उस टाइम, और जब मैं बाल आश्रम में आया उस टाइम, मुझे बहुत फ़र्क लगा। क्योंकि मैं सुबह उठना, डेली रूटीन करना, पढ़ाई करने जाना, खेलना कूदना और फिर अच्छा खाना खाना, प्यार मोहब्बत ये नहीं मिल पाती थी, जो कि मैंने बचपन में सीखा कि बाल आश्रम में रहकर अधिक हकीकत में बचपन क्या है। उस बचपन को मैंने वहाँ जाना। जब मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करी तो मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब भी किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से घुटन सी हो रही थी कि मैंने जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ मैं खुश हूँ, लेकिन जो बच्चा जिसके लिए जो भाई साहब जी ने, जो आदरणीय सत्यार्थी जी हैं, उन्होंने जो मुक्त कराया मुझे, और मेरे जैसे अकाउंटेंट का मैं जिस जगह पे, जिस अर्गन वायर इंडस्ट्री था वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो बगल में इंडस्ट्रीज में भी बच्चे काम कर रहे थे। तो मेरे में जाना कि नहीं, मेरा बचपन जब बचपन में ही सुनिश्चित करने की जो भावना, जो उद्देश्य, जो सत्यार्थी जी, जो आदरणीय भाई साहब हैं, हम उनको प्यार से कहते हैं, उन्होंने जो ये जो संकल्प, ये जो बीड़ा उठाया है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा। अरविंद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ये जो अवेयरनेस बढ़ाते हैं, आप अपनी कहानी बताते हैं इन लोगों को, और अगर लोग पलट के बोले कि ये गरीबी की वजह से ज़रूरी है, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हमने बहुत फेस किया, क्योंकि हमें ऐसे सवाल का जवाब बहुत करने पड़ते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, शायद मेरा सवाल, जो आपका सवाल है, उसका जवाब भी शायद मिल जाए कि अगर जिस व्यक्ति का हाथ कटता है मलहम पट्टी उसी को मिलता है। सिर्फ हम दूसरे जो व्यक्ति देखते हैं वो सिर्फ महसूस कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा जो बाल मजदूरी करता है, आप जो कहते हैं कि गरीबी के कारण, तो भाई साहब जी कहते हैं गरीब माँ बच्चे को पैदा बाल मजदूर के लिए नहीं करता, लेकिन एक बाल मजदूर गरीबी को जरूर पैदा करता है। अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, अगर होटल में जाकर काम करेगा, तो उसका मानसिक, शारीरिक सारे विकास रुकते हैं और उसमें आगे चल के वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर पढ़ लिख लेता है तो अपना घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल्स हैं, वो उसको पूरा अच्छे से कर सकता है और अपना गरीबी को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए वो सोच सकता है। तो यही चीज़ें हम उनको यही समझाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आज हम कह के ये बात कह के रह रहा है कि मैं गरीब हूँ, इस वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये गलत है। आज आप बच्चों को पढ़ाइए, कल जो ये आपका बच्चा कुछ बन जाएगा ना, उस दिन आपको ये नहीं कहेगा कि पापा आप गरीब थे, मुझे बाल मजदूरी करना। आपको वो जवाब मिलेगा, पापा आप गरीब थे लेकिन आपने मुझे पढ़ाया, आज मैं इस जगह पे हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। किंसु, अब आपसे बात करते, आप 7 साल के थे जब आपको बाल मजदूरी से बचाया गया, उसके बाद आप इंजीनियर भी बने, और लेकिन वापस ये एक्टिविज्म में आ गए हैं, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए आ गए हैं, और आप बाहर भी गए हैं, अक्सर बाहर भी गए हैं ये कैंपेन करने के लिए। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम किंसु कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं। जब मैं छोटा था, तकरीबन 6-7 साल का, उस समय मेरे पिताजी गाड़ी चलाने काम करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ गाड़ी पे काम करता था और गाड़ी साफ सफाई का भी काम करता था। परंतु उसके बाद बच्चों आंदोलन के ही कार्यकर्ता के द्वारा मुझे बाल आश्रम विराटनगर लाया गया। अरविंद ने बताया कि वो भी बाल आश्रम रहा है, वो भी हमारे साथ ही था यहाँ पे। आज से 15 साल पहले जब वो यहाँ पे रहता था, मैं भी उसके साथ ही था। हम लोग ने यहीं पे पढ़ाई की, मैं भी यहीं पे रहा और पढ़ना लिखना सीखा। इससे पहले मैं कभी स्कूल नहीं गया, बाल आश्रम आने से पहले पहली बार यहाँ पे आके पढ़ाई लिखाई की, स्कूल गया, पढ़ना सीखा। परंतु जब मैं यहाँ पे था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ रहे जिनको मैंने जाना और उनकी कहानियां सुनी, जो कि मुझसे बहुत बुरी परिस्थितियों में रहे थे। कई बच्चे हो गए थे जिनके माता पिता के बारे में उनको पता नहीं था। तो इस तरीके से मुझे लगा कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ और मैं जो मैंने सीखा है, जाना है, उससे मैं और भी बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ। Well, thank you so much, Kinsu, Champa and Arvind, for sharing your inspiring stories. So there you can see the devastating effect that child labor and exploitation has on society and on our children. But these stories that were just shared by the young activists give us hope that we can turn things around, and we all need to come together to fight against this, especially after the COVID pandemic and economic impact that it's had, the economic fallout, because this is pushing more children into child labor. Thanks for watching. Goodbye.